I welcome you all for our first session of chemistry. Let me introduce myself first. I am your chemistry faculty, Javed Salman. I have completed my MSc in analytical chemistry from Government Institute of Science, Nagpur, and I am privileged to have a SRF at Indian Academy of Sciences. My working center was Amrita University, Kerala. Under the guidance of Professor Ashok Banerjee, I have completed my research work. From graduation onwards, I was passionate about teaching, so I continued that. And right now, I am working with one of the famous institute, Catholic Institute, which provides coaching for JEE and NEET exams, St. Joseph's Technical Institute. In collaboration with other wonderful faculties, those who are having vast experience of teaching in JEE and NEET. So one of my friend has given me this opportunity, and he is also already working with you. It's Ijaz sir, your physics faculty. He introduced me over there that sir, you can also being a part of this wonderful venture, which is working for the development of our society. So I am honored to be a part of this small efforts what we are taking. हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस हमारी छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए और आप लोगों की मेहनत को भी कबूल फरमाए. So I would like to begin with the structure of atom, the chapter number 2, and it is a very, very important chapter. Every year you can see that at least 2 questions are there from this chapter in your competitive exams, JEE as well as NEET or NDA or KVPY. Some of you, if you are interested for research, those who are preparing for Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana, KVPY, it is one of the best. Yeah, it is 11th class chapter, structure of atom. हाँ, मोल कंसेप्ट भी रिवाइज करवाया जाएगा. अगर आप बोलेंगे तो मोल कंसेप्ट को भी रिवाइज करवाएंगे. Yes, so I hope so. I have given my introduction, so we should go ahead with our topic. Yeah, the syllabus will cover NEET as well as JEE both. Okay. First of all, we will go up to the mains part, and then after advanced part also we will hope so we will continue with advanced part as well. Okay, mole concept एक बार फिर से समझाना है. Okay. Sure, no problem. See, in mole concept, actually it is a very vast topic. Okay. It is not having only 1 or 2 contents. It is having, okay, more number of concepts. So पोर्शन हमारी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा कवर करने की. ओके, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट गो फॉर क्विक रिवीजन. दिस इज अ टाइम फॉर अ क्विक रिवीजन. ओके, we have to just revise a few concepts and then more and more practice. We have to pay attention for more and more practice. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा.
Okay. So first of all, या टॉपिक वाइज अगर हम लोग देखते हैं, सो मोल कंसेप्ट में, या यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम, वी हैव अरिहंत एज वेल एज अरिहंत का आप जो है क्वेश्चन पेपर्स ले सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स, एज वेल एज यू हैव एमटीजी पब्लिकेशन उसका भी रिफर कर सकते हैं, या एग्जैक्ट राइट, यू कैन रिफर एमटीजी एज वेल. Arihant, MTG, this two you go. And for chemistry, I would like to tell you कि आप NCERT टेक्स्ट बुक, सबसे पहले NCERT टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए. इनफैक्ट अरिहंत की तरफ से NCERT एक्सट्रैक्ट भी आया है. अच्छा, अभी आपको मोल कंसेप्ट भी नहीं हुआ है बेटा. डीसी पांडे भी अच्छा है. हम कह रहे हैं आपको अभी फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन पर. ओके, अगर जो मेंस और एडवांस के लिए जाना चाहते हैं वो लोग डीसी पांडे वगैरह को भी रिफर कर सकते हैं. ओके, यू कैन गो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओपी टंडन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. ओके, या यू कैन रिफर दैट. अरिहंत का ले लीजिए आप, नीट का प्रिपरेशन बुक. ओके, नीट के लिए आता है अरिहंत का, और या फिर एमटीजी का एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट के नाम से आता है. दिशा पब्लिकेशन का भी आता है एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट के नाम से. I will share the images of the book in group. Okay, so you can have a look over there. Yeah, surely I will tell the name as well as picture I will share in the group. So MTG हो गया. फर्स्ट नंबर पे आप अरिहंत को रिफर करिए, अरिहंत है. सेकंड नंबर आपका MTG. थर्ड नंबर यू कैन रिफर दिशा पब्लिकेशन. सो दिस थ्री. यस, यू कैन गो थ्रू द LN. अगर आपके पास डायरेक्टली LN का मटेरियल अवेलेबल है, आकाश का मटेरियल अवेलेबल है. ओके, सो दैट वुड बी ग्रेट. Okay, Akash or Alan, whatever reference material you have, you can go through it. But the main thing is that you have to focus first on NCERT textbook. NCERT textbook को बहुत अच्छे से आप read करिए first of all, and then just refer to the previous year questions. You will found that questions are mostly are from. Okay, 1 minute. I will try for brightness. Yeah, now it is okay. Background I have. Okay, I have. Hello, voice is not clear. Pradeep is good for beginning. Okay, if you are, it is just your beginning, you can go for Pradeep as well. और इसमें बहुत ही अच्छा बुक है आपका मॉडर्न ऑफ एबीसी. मॉडर्न्स ऑफ एबीसी you can prepare, you can refer that. Okay, that's very good for the beginners. For the beginners and those who want to go for the next level, those who want to go for next level. Okay, हिंदी भी यूज करेंगे, no problem. या MTG, ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी, फिंगरप्रिंट्स ऑल आर गुड. आप अपना सेल्फ एनसीईआरटी से भी नोट्स बना सकते हैं. एक चीज आपको हम बता दें कि आपके खुद के जो नोट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है. आपने अगर आज एक चैप्टर स्टडी किया है, आपको एक चैप्टर समझाया गया है और एक चैप्टर आपने आज स्टडी किया है, तो आपने उससे क्या नोट्स तैयार किए हैं, आपने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से तैयार किए हैं. क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप अपने हाथ से लिखते हो वो आपके माइंड में हमेशा के लिए स्कैन हो जाता है. हर दिन आप जो भी स्टडी कर रहे हैं उससे आप पॉइंट्स बना करके कॉपी में लिखिए. you will found that it is remaining in your mind for a long time. जो चीज आप अपने हाथ से लिख रहे हैं वो. Actually I think so there is a network issue. Because of some network issue.
Okay, I think so some network issues I'm facing. Okay, because of that, this problem you are getting breaking of voice or this breaking of video. Yes, friends. So one minute, I'll share the screen. We are going ahead with the first of all, we will begin with this. As I told you, structure of atom. I was unaware that you have to go, you want that mole concept also. Today I have prepared for structure of atom, and especially in that structure of atom, I have brought to you for you specially, that is Bohr's atomic theory. That is very very important, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. Okay, so today I am starting with that topic, and surely in coming classes, in future classes, I will share, I will go through that mole concept as well. Will it be okay? ये सही रहेगा? हाँ, हम आगे आने वाली क्लासेस में मोल कंसेप्ट भी करवाएंगे. आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो टॉपिक है बोर्स एटॉमिक थ्योरी और सॉरी एंड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, उसके ऊपर बात करेंगे. ठीक है? ओके. देखिए, आपने आपकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा एटम के बारे में. एटम is the smallest particle which takes part in chemical reaction. Okay, and you have heard about molecules. Molecules के बारे में आप सुने हैं. ठीक है, कंपाउंड्स के बारे में आप सुने हैं. मॉलिक्यूल्स डायटोमिक मॉलिक्यूल हो सकता है, ट्राइटोमिक हो सकता है, टेट्राएटोमिक और पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल हो सकता है. जब दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो में, तो आपका कंपाउंड बनता है. ओके, सो ऑल दिस कंपाउंड, just like if you say water H2O, compound CO2, calcium carbonate, any compound, we know that this molecule or this compound is made up of atom. Okay, but how this atom, ये जो atom आपका है, ये atom दिखता कैसे है? ओके, और इसके कंबाइन, ये एक से ज्यादा एटम एक दूसरे से जो कंबाइन हो रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ओके, सो इन आपकी प्रीवियस क्लासेस में आपने थोड़ा बहुत आइडिया ये लिया हुआ है कि हाँ भाई, दो एटम, ठीक है, आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है, और रीजन उसके पीछे ये होता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं. अपना जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं. इसलिए वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं. ओके, यस, आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भेजिए. ओके, आई विल ट्राई टू आंसर. जी, सो आगे बढ़ रहे हैं. तो कंपाउंड आपका बनता है जब एक या एक से ज्यादा, जब दो या दो से ज्यादा आइटम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं. और हम पढ़ चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस में कि मेनली दो टाइप से कंपाउंड बनते हैं. एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड, दूसरा होता है आपके कोवेलेंट कंपाउंड, और तीसरी कैटेगरी फिर आपने आपकी हायर क्लासेस में पढ़ी, वो थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. राइट, सो इन सभी जगह पर हम देखते हैं कि एटम्स एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं. आयनिक कंपाउंड में देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक एलिमेंट जो है, एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, और एक जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है दूसरे एलिमेंट का. जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की बात करें,
तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है आपका NaCl। सो ये जो NaCl बना है, ये कैसे समझ में आया कि भाई NaCl में, ठीक है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ओके, ये तब समझ में आया जब हमारे पास में एटम का क्या अवेलेबल था, स्ट्रक्चर अवेलेबल था। और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया किसने है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग कंट्रीब्यूट किए हैं, तब जाके हमको पता चला है कि भाई एटम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें, सबसे पहला मॉडल जो प्रपोज्ड किया था, द फर्स्ट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट, या एनीबॉडी कैन टेल मी द फर्स्ट, सबसे पहला मॉडल एटम का किसने प्रपोज किया था? या J.J. Thomson, right answer, very good. The first ever, okay, the first model was proposed by, atomic model was proposed by J.J. Thomson, that is called John Joseph Thomson. Okay, और उनके मॉडल को, ठीक है, आपको पता होगा, his model was also known as, okay, his model was also known as प्लम पडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, और क्रिसमस केक मॉडल, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रिसमस केक मॉडल, या प्लम पडिंग मॉडल, ओके, वाटरमेलन मॉडल, वेरी गुड, और ऑल्सो कॉल्ड क्रिसमस केक मॉडल। तो इनके हिसाब से, थॉमसन के हिसाब से, एटम इस टाइप से होता है जैसे तरबूज में हमारा रेड ईटेबल पार्ट होता है, वाटरमेलन में उस टाइप से पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जैसे सीड्स होते हैं वाटरमेलन में, ठीक है, तरबूज में जिस टाइप के सीड्स होते हैं उस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। बट एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ जो है, ओके, टुगेदर दे कैन नॉट बी, ओके, द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज दोनों भी एक साथ मिलकर के बैठ नहीं सकते। So that's why that model was not accepted by a group of scientists. Then the another model was put forwarded by the scientist Rutherford. Okay, Rutherford's model, very famous model. Okay, so the Thomson model was not accepted because it was not providing information regarding stability कि भाई अगर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम बिठा दें तो वो तो क्या हो जाएगा, ओके, इट विल बिकम हाईली अनस्टेबल, द न्यूक्लियस विल बिकम हाईली अनस्टेबल, तो ये पॉसिबल नहीं है। दैट मॉडल वाज नॉट, ओके, इट वाज डिस्कार्डेड। देन सेकेंड मॉडल, जो नया मॉडल फिर लेकर के आए थे साइंटिस्ट रदरफोर्ड, इनके मॉडल का नाम क्या था, व्हाट इज द नेम ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, और एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैरी आउट किया था, व्हाट इज दैट कॉल्ड, गोल्ड फॉइल मॉडल, गुड, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, गोल्ड फॉइल, राइट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, मुझे कोई बताएगा अल्फा पार्टिकल होते क्या है, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? हीलियम न्यूक्लियाइड, राइट आंसर, गुड, हीलियम न्यूक्लियाई जो होता है उसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दें तो बचता है He2+, हीलियम डबल पॉजिटिव, उसमें होता है सिर्फ मास, it is having only mass, not charge, it is having only sorry, so इसमें होता है मास, ओके, 4 यूनिट मास होता है और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, किसमें, हीलियम न्यूक्लियाई में। तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हीलियम न्यूक्लियाई के जैसे होते हैं, डबली पॉजिटिव हीलियम।
So when he bombarded alpha particles on very thin gold foil, okay, he observed that, okay, कुछ conclusions उनको मिले थे, 3 important conclusions उनको यहां से मिले थे. Okay, alpha particle scattering experiment से 3 main conclusion उनको मिले थे. Okay, what was the first one? What was the postulate or the conclusion from Rutherford's nuclear model? हाँ, कि इसमें न्यूक्लियस होता है. सबसे पहला पॉइंट जो उनको पता चला था वो ये था कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली होता है, या मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. एटम के अंदर बहुत सारी खाली जगह होती है. दूसरा पॉइंट, दूसरा जो उनको पॉइंट यहां से उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद जो एक्सट्रैक्ट किया था वो ये था कि जो सेंटर होता है एटम का, जो सेंटर होता है एटम का वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है इनिशियली. क्योंकि उन्होंने देखा कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो, हाँ, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम, ये भी सही है. तो दूसरा पॉइंट जो हम कहेंगे, पहला पॉइंट ये था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. हाँ, इसका अधिकांश भाग खाली होता है, राइट, ठीक है. दूसरा कि जो सेंटर होता है, एटम का जो सेंटर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. और तीसरा पॉइंट जो उनको पता चला था वो ये है, जो कंक्लूजन तीसरा वहां से निकला था वो ये है कि जो सेंटर होता है एटम का वो मासिव होता है. इट इज मासिव बिकॉज 12,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल, 12,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल जो है जिस एंगल से गया था उसी एंगल से वापस आ जाता है. ओके, हालांकि ये परसेंटेज देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन वो अल्फा पार्टिकल जो वापस आया था, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हम एक बॉल लें और बॉल को अगर हम दीवार पे फेंकें तो उस दीवार से टकरा के बॉल वापस आएगा. क्यों? क्योंकि दीवार जो है वो मासिव है, इट इज हैविंग मास. ओके, दैट्स व्हाई दैट अल्फा पार्टिकल इज रिबाउंड, यानी वो वापस आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल. तो ये 3 मेन कंक्लूजन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से मिले थे. लेकिन it may be 20,000, in book it is given 12,000, 1 out of 12,000, that's why we are saying 1 out of 12,000. Okay, it is given in NCERT textbook itself that 1 out of 12,000 अल्फा पार्टिकल, यानी 12,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल जो है वो जिस एंगल से जाता है उसी एंगल से वापस होता है, जिससे कि रदरफोर्ड्स ओके कंक्लूड किए कि हाँ भाई इसका जो सेंटर होता है वो मासिव होता है, ठीक है ना, और पूरा का पूरा एटम का मास जो है वो सेंटर में ही होता है. और बाद में उसको उन्होंने उस सेंटर को जो नाम दिया था वो न्यूक्लियस नाम दिया था. दैट्स व्हाई रदरफोर्ड मॉडल इज आल्सो नोन एज रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है. ओके, और फेमसली इट इज नोन एज न्यूक्लियर मॉडल, क्योंकि इन्होंने ही सेंटर को जो है वो न्यूक्लियस नाम दिया था. अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है. आई हैव फाउंड दिस थिंग. अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? नहीं, माइकल फैराडे नहीं, जे थॉमसन. इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन किए हैं. Faraday has given about charge. Okay, what is the charge? Electron discovered by J.J. Thomson. Then प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया? Who discovered proton? Rutherford, Goldstein. Yes, exactly. I want to point out this. Okay, because at many places I have found that students are giving this type of answer. See,
आई वुड लाइक टू शेयर हियर, मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एटम का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये बताया था रदरफोर्ड ने, लेकिन उन्होंने प्रोटॉन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था। प्रोटॉन वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल जो है वो गोल्डस्टाइन किए थे, कि एटम के अंदर जो सेंटर होता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कि मैसिव होता है, वो प्रोटॉन के प्रेजेंट होने की वजह से होता है। प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन एटम के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में है, इसी तरह से प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड इट इज वन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सबसे पहले प्रोटॉन वर्ड और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, ये बताया था गोल्डस्टाइन। ओके, सो दिस इज अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इट क्लियर, डोंट गेट। ओके, आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपका क्लास 11th का, उसमें भी आप देखिए, पेज टर्न करिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पे पूरे पार्टिकल्स की डिस्कवरी बताइए आपको। कैथोड रेस कैसे डिस्कवर्ड हुआ, कैनाल रेस कैसे डिस्कवर्ड हुआ है। ओके, देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी जो है वो रदरफोर्ड किए हैं, और प्रोटॉन का डिस्कवरी जो है वो गोल्डस्टाइन किए। देन थर्ड पार्टिकल इज योर न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक किए। ओके, तो प्लीज इसको क्लियर कर लीजिए। ओके, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन, प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टाइन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी चैडविक, और न्यूक्लियस ऑफ एटम, हम बायोलॉजी वाले न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे, जो सेल में भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है, हमारी जो सेल होती है, सेल में भी न्यूक्लियस होता है, हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका डिस्कवरी कौन किए, सो दैट इज रदरफोर्ड। ठीक है, हाँ, लेकिन ये जो रदरफोर्ड का मॉडल था, इसके भी कुछ क्या है, ड्रॉबैक्स थे। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? रदरफोर्ड ये तो बता दिए थे कि भाई पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, नेगेटिव चार्ज बाहर होता है, ठीक है। अब और ये नेगेटिव चार्ज फिक्स भी नहीं होता, ये भी उन्होंने बताया था, ये नेगेटिव चार्ज फिक्स नहीं होता, ये रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। सो अगर ये माना जाए कि ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, so what will happen? ड्यू टू इट्स सर्कुलर मोशन, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होता है, ओके, ड्यू टू चेंज इन एक्सेलरेशन, ओके, इट रेडिएट एनर्जी। वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन, ओके, व्हेन इट रेडिएट्स एनर्जी, इट लूजेस एनर्जी, एंड देन इट फॉलोज, वो क्या करेगा, स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा। जैसे हम मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना, साइकिल चला रहे हैं, तो हम एक सर्कुलर पाथ में साइकिल चला रहे हैं, लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे हमारी एनर्जी खत्म होगी, ओके, सो स्लोली वी विल फॉल इनटू द सेंटर। इसी तरह से जब एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है, रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में, इट लूजेस एनर्जी, एंड देन धीरे धीरे क्या करेगा, वो स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, देन इट विल लीड्स टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो इस वजह से जो आपका रदरफोर्ड्स मॉडल है, उसको भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। दिस मॉडल वाज आल्सो नॉट, ओके, accepted by the group of scientists. Then the new model was proposed by scientist नील बोर, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। और आज हम लोग जो स्टडी करते हैं, जितनी भी स्टडी हम लोग एटम के बारे में करते हैं, वो सारी नील बोर्स के ऊपर बेस्ड है। And he was a very clever fellow actually. What he did, Bohr, what he did, और ये एक्चुअली रिसर्च में होता है, दिस हैपन्स इन रिसर्च, ओके। हम लोग रिसर्च में क्या करते हैं, री प्लस सर्च, ठीक है ना, एक इंफॉर्मेशन है उसको फिर से एक बार सर्च करते हैं स्टार्टिंग से, और जो पॉइंट्स वहां पर दिख रहे हैं, जो ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो नील बोर भी वही काम किए थे, जो रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स थे उसको दूर करने का काम किया। वेरी क्लेवरली ही हैज रिमूव द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल एंड forwarded his own model, that is called Bohr's atomic model. But
ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है कि हाँ हमने उनकी जो ड्रॉबैक्स थे उनको अपने मीठी मीठी जबान से जो है तो या मीठे मीठे बोल से जो है तो हटा दिया और अपने वहां पे लगा दिए। ठीक है, तो सिर्फ बातों का खेल नहीं था, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया उन्होंने। ठीक है ना, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किए। ओके, दैट हैज टेकन ईयर्स। ओके, सालों साल उनका रिसर्च चलता रहा, उनके एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे, उसके बाद जो कंक्लूजन मिला वो उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने प्रेजेंट किया, और वही हम लोग आज स्टडी करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, सो पहला उनका पॉइंट क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? ओके, सो Niels Bohr postulated a model of the atom in 1913. Postulates of the Bohr's atomic model are: in an atom, the electrons around the nucleus in certain definite circular path called orbits. ओके, तो ये तो पहला पॉइंट तो सभी को क्लियर है कि जो सर्कुलर पाथ होता है अराउंड द एटम उसे ऑर्बिट कहा जाता है। सेकेंड, उसी के अंदर पॉइंट है कि ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट एनर्जी विच आर नोन एज एनर्जी लेवल और शेल्स। दिस एनर्जी लेवल आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 और कॉल्ड केलेमन शेल स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे कि आप यहां फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, या अब दूसरा पॉइंट इन्होंने जो बताया था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू बोर्स, जब तक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना तो वो एनर्जी गेन करते हैं, ना तो वो एनर्जी लॉस करते हैं। ओके, लेकिन अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाए बाहर से, अगर इनको कोई एनर्जी मिल जाए तो ये नेक्स्ट एनर्जी लेवल पर जंप कर सकते हैं। ओके, E1 से ये E2 पर जा सकते हैं, और जब वापस अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल पर आएंगे या ऑर्बिट में आएंगे तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था वो एनर्जी को क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे, इमिट करेंगे, और उस एनर्जी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डेल्टा ई से। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू आप कह सकते हैं डेल्टा ई अपॉन एच। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट अबाउट ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में खुद से नहीं जाते। ठीक है, वो अपने ही ऑर्बिट में, क्योंकि हमने पहले ही उनका नाम बता दिया एनर्जी लेवल है, और वो क्यों एनर्जी लेवल कहलाते हैं आगे में जाके आपको पता चलेगा। हर ऑर्बिट की एक डेफिनेट एनर्जी होती है, हर ऑर्बिट की या हर शेल की एक डेफिनेट एनर्जी होती है, इसलिए उन्हें एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। और जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी, वही उसमें रिवॉल्व कर सकते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व नहीं करते। जी देखिए, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब किया और नेक्स्ट एनर्जी लेवल पर आ गया, अब वापस एनर्जी रेडिएट कर दिया और अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल में चला गया। Okay, the third point of Bohr's theory was quantization of momentum. Okay, an electron does not gain or lose energy in a continuous manner, but in the form of small packets. This is known as the concept of quantization. Quantization means that energy cannot vary continuously to have any arbitrary values, but can change only discontinuously to have same specific values. मतलब इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा या लॉस करेगा,
तो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी को लॉस नहीं करता, ठीक है ना। जैसे हम कहें कि भाई एक बिस्किट का पैकेट है आपका, ठीक है, तो बिस्किट के पैकेट में क्या होते हैं, छोटे 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 बिस्किट्स अरेंज होते हैं, राइट, ठीक है। और एक मान लीजिए एक होता है आपका, एक होता है डोनट, ठीक है ना, डोनट पूरा एक सीधा होता है ब्रेड के जैसा, ठीक है, डोनट। और एक है आपका बिस्किट का पैकेट, तो बिस्किट के पैकेट में छोटे छोटे बिस्किट्स होते हैं, ईच बिस्किट इज हैविंग सम डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी तरह से, इसी तरह से आपको जो सन से एनर्जी मिलती है, सनलाइट से जो हमारे पास एनर्जी आ रही है, वो भी किस फॉर्म में होती है, डिस्क्रीट अमाउंट में होती है, ओके, या क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है। आप ये इमेजिन कर सकते हो कि सन से हमें क्या मिल रही है, ठीक है ना, जो सनलाइट मिल रही है वो एक्चुअली एनर्जी है, ठीक है। या आप ये समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि सन से अपने को जो है बिस्किट्स, ओके, बिस्किट्स का शावरिंग हो रहा है, हर बिस्किट में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो जो रेडिएशन सन से हमारे पास आ रही है वो एक रेडिएशन, एक कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं है, इट इज अ क्वांटाइज्ड फॉर्म। सो ईच रेडिएशन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, उसमें छोटे छोटे बंडल होते हैं एनर्जी के, ओके। दिस बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा, रिमेंबर दिस बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। और अगर मान लीजिए यही एनर्जी हमको सन से मिल रही है, सनलाइट के फॉर्म में मिल रही है, देन इट इज कॉल्ड फोटोन। एक छोटा बंडल जो होता है एनर्जी का, इट इज कॉल्ड फोटोन। अगर सनलाइट वाली है, अगर सनलाइट है और उससे जो हमको एनर्जी मिल रही है, छोटा बंडल पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फोटोन। और अगर कोई दूसरे सोर्स से एनर्जी मिल रहा है, देन इट इज कॉल्ड क्वांटा। एक और एग्जांपल यहाँ पे बताया गया, क्वांटाइजेशन कैसे समझेंगे आप, या जो एनर्जी है वो क्वांटाइज होती है कैसे समझेंगे। मान लीजिए बॉल है, बॉल हमने क्या किया है, सीढ़ी से उसको गिराया है, तो क्या होगा, बॉल धीरे, आप देखिए पहले स्टेप से दूसरे स्टेप पे आता है, फिर दूसरे स्टेप से थर्ड स्टेप पे रोल करता है, इट इज रोलिंग डाउन, बट द एनर्जी चेंजेस इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, सेम एनर्जी से, ओके, जो उसका रोलिंग है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस। एनर्जी जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, वेरी करती है। लेकिन अगर हम उसको क्या करें, उस बॉल को हम किसी रैंप पर से, ठीक है ना, रोल करें, तो जैसे, ओके, स्लोप होता है, स्लोप पे से या रैंप पे से अगर हम उसको रोल करें तो क्या होगा, एकदम कंटिन्यूअस चला जाता है, स्पीड से निकल जाता है, राइट। तो इसी तरह से एनर्जी जो है, जो रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन इमिट कर रहा है, वो एनर्जी भी कैसी होती है, क्वांटाइज्ड होती है। हम उसको उसको हम मेजर कर सकते हैं। फायदा हमें क्या मिलता है उससे, कि हम उसको मेजर कर सकते हैं, वो कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज द पॉइंट रिगार्डिंग क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, ओके। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोस थ्योरी का, नेक्स्ट पॉइंट, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम, ओके। ओनली दोज एनर्जी लेवल orbits in which the angular momentum of the electron is an integral whole number multiple of h upon 2 pi are permissible. According to Bohr, सिर्फ वही एनर्जी लेवल्स अलाउड हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन पाई का क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो, ओके। नाउ द एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। सो उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू बोर्स क्या होनी चाहिए, एक रेंज में, एक डेफिनेट मैनर में क्या होती है, एनर्जी उसकी चेंज करती है। और अगर ये वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल है एनएच अपॉन 2 पाई का, तो ही वो ऑर्बिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो हियर वी आर हैविंग mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई,
mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अगर मान लीजिए कि वो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई फॉलो नहीं कर रहा है तो सर्कुलर पाथ नहीं रहेगा, वो स्पाइरल पाथ बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने बताया था वो था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन अपने को डिस्कस करने हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अब हमें बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? या h अपॉन 2 पाई, करेक्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर आपका सेकेंड ऑर्बिट में है तो कितना होगा? If electron is in second orbit, yes, it is h upon pi. 2h upon 2 pi means it will be h by pi. If electron is in third orbit, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में हो तो कितना रहेगा एंगुलर मोमेंटम? 3h अपॉन 2 पाई। और इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ ऑर्बिट में है तो कितना रहेगा? फोर एच अपॉन 2 पाई, मतलब सीधा सीधा 2h अपॉन पाई। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट ऑर्बिट में जाते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं, तो क्या हो रहा है? एंगुलर मोमेंटम बढ़ रहा है, एंगुलर मोमेंटम बढ़ रहा है। अब यहां से हमें क्वेश्चन मिलते हैं, यहां से इस पॉइंट से अपने को क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन कैसा होगा? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट? सेकेंड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशनशिप है? ट्वाइस, करेक्ट। सेकेंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम होता है सिर्फ h अपॉन पाई, जबकि फोर्थ ऑर्बिट में जस्ट अभी आपने फाइंड आउट किया कि 2 इंटू एच अपॉन पाई होता है, सो इट इज ट्वाइस। ओके, अब हमें बताइए कि एंगुलर मोमेंटम सॉरी, एंगुलर मोमेंटम जो है सेकेंड ऑर्बिट और सिक्स्थ ऑर्बिट, क्या रिलेशनशिप है सेकेंड ऑर्बिट और सिक्स्थ ऑर्बिट के बीच? करेक्ट, 3 टाइम्स जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा इन सिक्स्थ ऑर्बिट। ओके, अभी बताइए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट एंड सिक्स्थ ऑर्बिट? हाँ, अगर हम कह रहे हैं हाँ हाफ टाइम्स, राइट, एग्जैक्टली। हमने कहा कि थर्ड ऑर्बिट और सिक्स्थ ऑर्बिट में क्या होगा रिलेशनशिप, तो थर्ड ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो सिक्स्थ ऑर्बिट का क्या होगा? 1 बाय या हाफ। ओके, थर्ड ऑर्बिट और सिक्स्थ ऑर्बिट का रिलेशनशिप की बात करें तो सिक्स्थ ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो थर्ड ऑर्बिट का डबल होगा। या थर्ड ऑर्बिट का अगर हम बात करें तो थर्ड ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम है वो सिक्स्थ ऑर्बिट का हाफ रहेगा, करेक्ट। यस, सो दिस टाइप ऑफ ओके रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन जो है हमें यहां से मिलता है एंगुलर मोमेंटम में, यहां से हमें मिलेगा ओके। अभी वर्कशीट जो आपके पास आएगी उस वर्कशीट में भी इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, सो उसको आप फिर सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो है एनर्जी से, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से। ओके, अकॉर्डिंग टू बोर के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, वेरियस एनर्जी लेवल्स इन अ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, यहाँ पे एक आपके पास फॉर्मूला आने वाला है, इसका एक डेरिवेशन है, ठीक है। डेरिवेशन हम लोगों को इसको सॉल्व करते हैं कूलॉम्स लॉ से। ओके, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें पूरा डेरिवेशन भी आता है। ओके, अभी हम लोग डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी फिलहाल फॉर्मूला देख रहे हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा उसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और अगर आप कहेंगे तो फिर किसी दिन क्लासरूम से, ओके, डायरेक्टली फ्रॉम द क्लासरूम वी कैन हैव दिस डेरिवेशन एज वेल। सो देखिए एनर्जी जो है, एनर्जी सॉरी, इट इज गिवन बाय माइनस के स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। और जब आप वैल्यूज रखेंगे, यहाँ पे के क्या है आपका, ओके, के है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन जो है ऑर्बिट, ओके, और के जो है आपका कूलम्स लॉ कांस्टेंट। इन सब का वैल्यू जब आप रखते हैं तो आपको फाइनली मिलता है -1312 किलोजूल पर मोल। आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको पर एटम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, हम जो ले रहे हैं यहाँ पर एसआई यूनिट ले रहे हैं, एसआई यूनिट आपका जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर एन की वैल्यू 1 है तो हमारे पास आता है -1312 किलो जूल पर मोल। फॉर्मूला इसका आपने अभी जस्ट देखा है, E इज इक्वल टू -1312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये जो बात हो रही है ये हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है, इसलिए यहां पर में Z की वैल्यू 1 ली गई। लेकिन अगर आपसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता है फॉर हीलियम प्लस, ओके, लिथियम डबल प्लस, ये जो एटॉमिक थ्योरी है, बोर्स एटॉमिक थ्योरी, ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अप्लाई होती है। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम की अगर हम बात करेंगे तो हीलियम प्लस, लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम डबल प्लस, और बेरिलियम की बात करेंगे तो बेरिलियम 3+। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ये आपका जो बोर्स थ्योरी है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि सबसे जो सेटिस्फाइड रिजल्ट है या वेरीफाइड रिजल्ट्स हैं वो हाइड्रोजन से मिलते हैं। द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आर गिवन बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके बाद आगे ही इसी में हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करके भी एक टॉपिक है इसी में, तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से ये पूरा का पूरा जो है एनर्जी का कैलकुलेशन किया गया। तो अगर हम देखें थर्ड ऑर्बिट में अगर जाते हैं तो -145.8 और फोर्थ ऑर्बिट में -82 किलोजूल पर मोल। अब हमें ये बताइए कि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, हम न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना। यू नो दैट वेरी वेल, आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, माइनस साइन इज यूज फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड प्लस साइन फॉर डेल्टा एच यूज फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस। यस, जितना इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के जितने पास होगा, ठीक है ना, यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन करिए कि एक पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दोनों जब पास पास होते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर क्या करेगा, अप्लाई करेगा। इस वजह से फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है वहां एनर्जी क्या होती है, ज्यादा रिलीज होती है। और जैसे जैसे हम लोग, जैसे जैसे आपका मान लीजिए
कि एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा, जितना दूर जाएगा उतना कम उसका न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन हो पाएगा, और कम इंटरेक्शन होगा एनर्जी भी कम रिलीज होगी। ओके, और याद रखिए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ओवरऑल, जब भी आप देखोगे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसका एनर्जी हमेशा 0 से कम रहेगा, माइनस आपको एनर्जी दिखाएगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज शोन एज माइनस। ओके, बिकॉज ओके दूर दूर आप जा रहे हैं, ठीक है ना, एनर्जी जो है कम रिलीज हो रहा है। एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब आप चले जाएंगे तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ भाई अब कुछ भी इंटरेक्शन इनमें नहीं हो रहा। बट जब तक के हम जानते हैं कि एन की वैल्यू आप 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 8 तक हम लोग अभी ले पा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन एनर्जी वहां पर रिलीज हो रहा है। द लोवेस्ट एनर्जी लेवल, यस, याद रखिए क्वेश्चन जनरली पूछता है कि एनर्जी हमें निकालना होता है। जैसे यहाँ पर भी हम पूछेंगे आपसे कि भी हाँ, फोर्थ, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फोर्थ ऑर्बिट, सो व्हाट इज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन फोर्थ ऑर्बिट एंड द सेकंड ऑर्बिट। ओके, तो ये जो डिफरेंस आता है ये फिर पॉजिटिव निकलेगा आपका, दिस डिफरेंस विल बी पॉजिटिव इन। और जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट, और जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जाता है, मान लीजिए सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड, फिर उसे हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसे कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ अभी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, सो यू कैन, अभी जैसे कि हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दो आपके क्या हैं, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल है। अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उनके बीच कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो एनर्जी रिलीज होता है। दैट्स वाई हमने अभी देखा कि फर्स्ट ऑर्बिट में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा, -1312 किलो जूल पर मोल। ओके, फिर आप सेकेंड ऑर्बिट में आ रहे हैं तो आप फॉर्मूला अप्लाई करें, -1312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो इस टाइप से आपका क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है। सो हम इसी के आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, इसी की टॉपिक के आगे हम लोग चलेंगे, क्योंकि इसमें अभी आगे जो है आपका टॉपिक है दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है लाइमन सीरीज का, बामर सीरीज का, ठीक है, वेवलेंथ निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पूछ रहे हैं। तो इसी के आगे वाले टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, कल से हम उसको व्हाइट बोर्ड भी यूज करेंगे। व्हाइट बोर्ड भी यूज किया जाएगा, पीडीएफ भी यूज किया जाएगा, ओके, साइमल्टेनियसली। केमिस्ट्री के लिए हमने बुक बताई आपको, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ले सकते हैं आप एमटीजी का, या फिर अरिहंत। अरिहंत, एमटीजी, या फिर आपका
मॉडर्न एबीसी, बहुत अच्छी बुक्स है। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा। आज हमने टॉपिक बस समझाया है, कल से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा क्लास में। हमें नहीं पता कौन मैडम पढ़ाते थे, आई डोंट नो। हमें ये कहा गया कि आपको, आप केमिस्ट्री क्लास लेंगे अगर आपके पास समय है, तो आई सेड दैट ओके, फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, डेडिकेटेड, यू आर डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट। ओके, हमारा थोड़ा इंग्लिश फ्लो ज्यादा है, बिकॉज आई यूज टू टीच इन कॉम्पिटिटिव कोचिंग, स्पेशली हमारे जो कैटलाइजर इंस्टीट्यूट, इसके पहले जहाँ पे हम काम करते थे कैटलाइजर इंस्टीट्यूट में, ज्यादातर सीबीएसई के स्टूडेंट्स होते हैं, आईसीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट्स इनरोल्ड होते हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट्स हमारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ही होते हैं सीबीएसई, तो हम लोगों का फ्लो इंग्लिश ज्यादा होता है। ओके, आई विल टाइप, ओके, टाइम को यही रखने की कोशिश करेंगे, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, इसी टाइम पर रखा करेंगे। नहीं, कुछ लोगों का कहना है सर हिंदी में बोलिए, ज्यादा हिंदी में, तो मतलब बिकॉज ऑफ देयर, उन्होंने जिस, जो मीडियम से ज्यादा उन लोगों का अटैचमेंट है, तो दिस इज और देयर, कोशिश करेंगे टाइमिंग यही रहे, मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी ओनली। थ्रेशोल्ड एनर्जी is the minimum amount of energy required, okay, to jump from one energy level to second energy level। यानी आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से थोड़ी सी भी एनर्जी ज्यादा आ गई, तो आप एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी ऐसा समझिए कि 12वीं पास होने का सर्टिफिकेट, जब आप 12वीं पास हो गए, आप कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं, जब तक 12वीं पास नहीं हुआ आप ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले सकते। इज इट क्लियर? वही थ्रेशोल्ड एनर्जी है। जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी, वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा। अगर आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी है, यानी आपने 12th पास नहीं किया, आप 11th में हैं, आप ग्रेजुएशन में नहीं जा सकते। 12वीं पास होना जरूरी है ग्रेजुएशन में जाने के लिए। दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? नॉमेनक्लेचर भी होगा, अभी एक एक टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। थ्रेशोल्ड मींस मैक्सिमम नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम उतना होना ही चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन में जाने के लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है, कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है, तभी आप ग्रेजुएशन में जाओगे, नहीं तो आप ग्रेजुएशन के लिए नहीं जा सकते। दैट मिनिमम एनर्जी विच इज ओके रिक्वायर to move from one energy level to another energy level, that is called threshold energy। उससे ज्यादा एनर्जी है, आप आसानी, यानी 12वीं आप पास कर गए हैं, आप डेफिनेटली किसी भी कोर्स में जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी 12वीं का एग्जाम होने का ही है आपका, आप नहीं जा सकते। एनसीईआरटी से ही चल रहा है ये बोर्स थ्योरी, अगर आप देखें बोर्स एटॉमिक थ्योरी, ये पूरा एनसीईआरटी से ही हमने पॉइंट्स लिया हुआ है, एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स है। ठीक है, आपके और भी दूसरे शेड्यूल्स हैं, आई डू हैव सम अदर शेड्यूल्स। ठीक है, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे।